نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. درس نمبر 13. عنوان اور ٹائٹل دیکھیں, منافق مومن نہیں ہو سکتا. منافق مومن نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اور 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ان دو آیتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ, اور بعض لوگ وہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, اور بعض لوگ وہ ہیں. مَن يَقُولُ, جو کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت پر, وما ہم, حالانکہ وہ نہیں ہے, بمؤمنین, ایمان لانے والے. یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی, یعنی مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے. وما یخدعون, اور وہ دھوکہ نہیں دیتے, الا انفسہم, مگر اپنے آپ ہی کو. وما یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. اب اس کا محاوری ترجمہ دیکھیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر, حالانکہ وہ بالکل ہی ایمان والے نہیں. دھوکہ دیتے رہے اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں, حالانکہ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دیتے بجز اپنی ذات کے, اور اس کا بھی احساس نہیں رکھتے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ منافق کسے بولتے. منافق کسے بولتے, کوئی بولو. جو ایمان نہیں رکھتے, کئی تو ایکٹنگ کرتے ہیں, ایمان ہے کر کر, ہاں, دکھانے والے. ہاں, جو دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بولتے. تو ان کی فیلنگ کیا رہتی, بولو. ہمیں ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دے رہے بول کے ان کی فیلنگ رہتی. اصل میں وہ کسے دھوکہ دے رہے, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے یا پھر اللہ کو دھوکہ دے رہے. کس کو دھوکہ دے رہے, خود کو دھوکہ دے رہے, ان کی آخرت برباد کر لیں, ان کے اعمال برباد کر لیں. اب آگے ان آیتوں کی تشریح ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. نمبر 2, حالانکہ وہ بالکل ہی ایمان والے نہیں ہیں. نمبر 3, دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں. نمبر 4, حالانکہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے سوائے اپنی ذات کے. نمبر 5, اور وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے, انہوں دھوکہ دیتے ہیں بول کر ان کو اس کی فیلنگ بھی نہیں ہے. جی آگے دیکھیے. دل میں کفر بسائے ہوئے زبان سے ایمان کی بولی بولنے کا نام نفاق ہے. دل میں کفر بسائے ہوئے زبان سے ایمان کی بولی بولنے کا نام نفاق ہے, اور جو ایسی حرکت کرتا ہے اسے منافق کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا کلیئر سے؟ اچھا, نفاق کی 2 قسمیں ہیں. اب وہ جو نفاق ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اعتقادی, نمبر 2 عملی. اعتقادی نفاق جس میں سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں, جس کی سزا یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا. یہ ہے اعتقادی نفاق. بولے تو بلیفز میں ڈائریکٹ اس کے بلیفز میں ہے نا,
निफाक है। उन्हें अल्लाह को दिल से मानता नहीं, टोटली जस्ट एक्ट कर रहा, तो उन्हें सीधा जहन्नम जाता। और अमली निफाक में ईमान का इस्तेहजार नहीं होता और आदमी गुनाह पर बेदरेग और जरी हो जाता है। और अमली निफाक में तो जो हमारे अमाल होते हैं ना, वो अमाल वाला जो निफाक होता, उसमें ईमान का इस्तेहजार नहीं होता। यानी एक ईमान वाला, अल्लाह को मानने वाला, उसको हमेशा एक डर होना चाहिए कि मैं खा रहा हूं तो हलाल खा रहा हूं या हराम खा रहा हूं। अल्लाह देख रहा होता ना, मैं जो काम कर रहा हूं ये काम जायज है कि नाजायज। ईमान वाला क्या है, डरते रहता। लेकिन जिसके अंदर अमली निफाक होता, उन्हें इसका इस्तेहजार, यानी अल्लाह देखता है, मैं मुसलमान हूं, ये सब भूल जाता। उसके बाद क्या होता, आदमी गुनाह पर बेदरेग बोले तो बेदरेग और जरी हो जाता है, यानी हिम्मत के साथ बगैर केयर करे के गुनाह करने लग जाता है। मक्की दौर में या तो मुसलमान थे या काफिर। मक्की दौर में यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में थे, उस वक्त तक सिर्फ दो तरह के लोग थे, या तो मुसलमान या काफिर। ये दो ही किस्म के लोग थे। जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो उस वक्त मदीने में दो कबीले मशहूर थे, औस और खजरज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए जब मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर, बोले तो मक्के को छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए, तो वहां दो मशहूर कबीले थे। एक का नाम औस, दूसरे कबीले का नाम खजरज। इन दोनों कबीलों ने अंसार बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, लेकिन यहूदी अब तक ईमान की नेमत से महरूम थे। ये दो कबीले जो थे ना, औस और खजरज, ये लोग अंसार बने, यानी अल्लाह के नबी को और अल्लाह के नबी के सहाबा के सपोर्टर्स बनकर उनको इस्लाम को फैलाने के लिए साथ दिया। लेकिन जो यहूदी थे वो अब तक इस्लाम की नेमत से महरूम थे, यानी इस्लाम कबूल नहीं करे थे। उनमें से हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सच्चे दीन को कबूल किया। यहूदियों में से मदीने में यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। अच्छा, यहूदियों में से सिर्फ अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ही वो सहाबी थे जो इस्लाम कबूल करे थे। मदीने में यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैजा। ये 3 कबीले जो थे ये आकर यहूदियों के कबीले थे। कबीले खजरज का एक शख्स अब्दुल्ला बिन उबई था। ये जो अल्लाह के नबी को साथ देने वाले कबीले थे, उनमें से एक कबीला था खजरज। उस कबीले का एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उबई। उसको मदीने में सरदारी का मकाम हासिल था और उसको बादशाह बनाने का इरादा हो ही रहा था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक मदीने में फैलने लगा। जाहिर है कि इस्लाम के फैलाव और उसकी हक्कानियत की वजह से सारे लोगों का रुख नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गया और अब्दुल्ला बिन उबई को अपनी सरदारी से महरूमी का खौफ हो गया। अब्दुल्ला बिन उबई इन आकर, ये जो खजरज नामी कबीला है, वो कबीले का सरदार था और वो जल्दी लोग इसको मदीने का बादशाह बनाने वाले थे। इतने में अल्लाह के नबी मदीने को आए तो सारे लोग अल्लाह के नबी की तरफ मुतवज्जे हो गए। इसकी तरफ से लोगों का अटेंशन जो है वो हटता चला गया। तो अब ये आदमी को क्या हुआ, एक खौफ, एक डर सीने में पैदा हुआ कि अब मेरी सरदारी जो है चली जाएगी। उसने दिल ही दिल में अपने कुफ्र को छुपाया और बजाहिर मुसलमान का लुबादा ओढ़ लिया। लुबादा बोले तो ड्रेस, वेशम बोलते ना तेलुगु में, वो ओढ़ लिया और अपने अकीदतमंदों को भी ऐसी ही चाल चलने की तरगीब दी। अकीदतमंद बोले तो जो उसके फैंस थे, उसको भी इसने यही सिखाया कि
अंदर से कुफ्र, यानी एक्चुअली वो लोग जो है काफिर थे, लेकिन ऊपर से क्या है मुसलमान के जैसे एक्ट करते थे। इस तरह मदीना मुनव्वरा में एक तीसरी जमात तैयार हुई जो मुनाफिकीन की जमात कहलाई। इसी गिरोह के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मुनाफिकून, सूरह हश्र के अलावा सूरह तौबा में तफसीलात बयान की और उनकी क़िला खोल दी, यानी उनका जो राज था अल्लाह ने उसको फाश कर दिया और उनका अंजाम बतलाया और उनका अंजाम बतलाया, यानी उनका जो बुरा अंजाम है अल्लाह ने उसको कुरान में ये सब सूरतों के अंदर अल्लाह ने उसको बयान फरमाया। इन मुनाफिकीन की ये चालबाजी थी कि जब वो मुसलमानों से मुलाकात करते तो कहते कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और जब काफिरों से मिलते तो कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, यानी डबल गेम खेलते। मुसलमानों के साथ है तो क्या बोलते थे, हमें अल्लाह के ऊपर भी आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते होते, लेकिन जब काफिरों के पास जाते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने उनकी हकीकत को वाज़ेह तौर पर बतला दिया कि ये मोमिन नहीं है, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हकीकत में ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें अपने आप का बार बार मुहासबा करते रहना चाहिए कि कहीं ये बीमारी हमारे दिलों में तो नहीं है। ये मुहासबा, ये जायजा हमारे दिलों में मौजूद मुमकिना निफाक को खत्म कर सकता है और हमारे ईमान की तजदीद कर सकता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को निफाक जैसी बीमारी से महफूज रखे और पुख्ता ईमान नसीब फरमाए। तो खुलासा ये है कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में थे तो उस वक्त सिर्फ दो लोग थे, एक है काफिर, दूसरे मुसलमान। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहाँ पर मुसलमान, काफिर यानी यहूदी वगैरह, और तीसरा जो ग्रुप था वो मुनाफिकीन, यानी ऊपर से मुसलमान अंदर से काफिर। तो मुनाफकत यानी अंदर एक ऊपर एक, ये जो चीज है ना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने इतनी सूरतों में इनकी जो पोल है अल्लाह ने उसको खोल कर रख दी, और इनकी जितनी बुराई है और इनका जो अंजाम है वो सारा का सारा अल्लाह ताला ने कुरान में इतनी सूरतों में बयान फरमाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी चीज है निफाक। तो ये वो जमाने की बात थी ऐसा नहीं है, बल्कि हमें भी आज अपने बारे में ये मुहासबा, अपने बारे में ये देखने की जरूरत है कि कहीं हमारे अंदर ऐसे काम नहीं है, ऐसे काम तो नहीं है जो हमें कुफ्र की तरफ, निफाक की तरफ खींच कर ले जाने वाले हैं। तो हमें भी अपना जायजा और अपना इम्तिहान सेल्फ एनालिसिस करते रहने की जरूरत है कि हम कितने हद तक मोमिन है और कितनी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो निफाक वाली चीजें हैं। तो इस तरह करके हमारे अंदर जो निफाक वाली चीजें उसको दूर करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी के सहाबा, बड़े बड़े सहाबा जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी थी, ज्वाइन हो जाओ, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी थी कि आप जन्नत में जाएंगे बोलकर अल्लाह के नबी ने बताया था, वो सहाबा भी डरते थे कि कहीं हमारा नाम मुनाफिकों की लिस्ट में तो नहीं है। तो मैं और आप तो उनके जैसा ईमान तो हमारा नहीं है, फिर भी हमें अल्लाह ताला ने जो भी दिया है अल्लाह का करम है, लेकिन हमें भी डरते रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जो ऊपर अलग अंदर अलग है तो उसको खत्म करने की जरूरत है और अपने अंदर ईमान को मजबूत करने की और ईमान की तजदीद यानी ईमान को फ्रेश करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कामिल ईमान नसीब फरमाए। जी।